Very good morning, students. Now we are going to discuss the corollaries related to the theorem first, which we have discussed in our last lecture. The very first corollary is prove that Hg, that is the space of analytic function, is a closed subset of CGC complex plane, that is the set of all the continuous complex function on G. हमें प्रूव करना है कि एच जी जो है वो क्लोज्ड सबसेट है सी जी सी कॉम्प्लेक्स प्लेन का. दैट इज़ वी आर टू प्रूव दैट एच जी इज़ क्लोज्ड, मतलब हमें प्रूव करना है कि एच जी क्लोजर इज इक्वल्स टू एच जी एंड एच जी क्लोजर इज कंटेन्ड इन सी जी कॉम्प्लेक्स प्लेन, दैट इज़ द सेट ऑफ ऑल द कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑन जी. We know that कि Hg is contained in the set of all the continuous complex valued function. Now taking closure on both the sides. Taking closure on both the sides, we have this. Now we know that the set of all the continuous complex valued function on G is compact. अगर वो compact है इसका मतलब ये closed भी है और bounded भी है. Closed भी है तो इसका मतलब इसका closure is equals to this. मतलब CGC complex plane का closure is equals to the set of all the continuous complex valued function. तो यहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं. That is we have Hg closure is contained in the set of all the continuous complex valued function on G. Now it remains to show that कि Hg closure is equals to Hg. ठीक है. Now it's obvious that कि A is contained in A closure. तो इसका मतलब Hg is contained in Hg closure. Now it remains to prove that Hg closure is contained in Hg. Required to prove क्या हो गया? This. Now we take some function, let it be f जो इसके क्लोजर को बिलोंग कर रहा है Hg क्लोजर को. अगर कोई एलिमेंट कोई भी फंक्शन x बिलोंग करता है a क्लोजर को, then there exists a sequence xn in a such that xn converges to x. तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर हम क्या लेंगे कि अगर f बिलोंग कर रहा है Hg क्लोजर को, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस fn इन Hg सच दैट fn कन्वर्जेस टू f वेयर f बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल द कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑन G. ठीक है. तो बट हमें प्रूफ क्या करना है? वी आर टू प्रूव दैट कि f किसको बिलोंग कर रहा है? Hg. ऑब्वियसली बाय फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है Hg में सच दैट fn कन्वर्जेस टू f, देन ये जो f फंक्शन होता है ये भी क्या हो जाता है? एनालिटिक हो जाता है. एनालिटिक हो जाता है तो f किसको बिलोंग कर जाएगा? Hg को. तो देन बाय थ्योरम फर्स्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, वी हैव f बिलोंग्स टू Hg. लिया कहाँ से था? Hg क्लोजर से. आ कहाँ गया? Hg में. दैट इज़ वी हैव Hg closure is contained in Hg. Also हमें ये भी पता है कि Hg is contained in Hg closure. दोनों को कंबाइन करोगे you will have Hg is equals to Hg closure. इसका मतलब Hg is a closed subset of all the continuous complex valued function on G. Now comes the result which we will use directly, that the set of all the continuous complex valued function is a complete metric space. ये just result है जो आप directly यूज़ करोगे. यहाँ पर आपकी फर्स्ट corollary फिनिश होती है. Now comes second corollary which is prove that Hg is complete metric space. Now by corollary first we have Hg is a closed subset of all the continuous complex valued function on G. और हमें ये भी पता है that the set of all the continuous complex valued function is complete metric space. तो and by the result that closed subset of complete metric space is again a complete metric space. तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? Hg is a complete metric space. यही हमें प्रूफ करना था. यहाँ पर आपके पास एक रिजल्ट यूज़ हुआ है दैट इज़ दैट the set of all the continuous complex valued function on G is a complete metric space. ये रिजल्ट हमने यहाँ पर इसका यूज़ करा है. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ कम्स द corollary थर्ड विच इज इफ fn from G to complex plane is analytic for each n greater than equals to 1 and the series summation of n varying from 1 to infinity fn z converges uniformly on a compact set to fz. इसका मतलब summation of n varying from 1 to infinity fn z converges uniformly to fz. ठीक है. देन वी आर टू प्रूव दैट कि kth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fz is equals to summation of n varying from 1 to infinity kth derivative of fnz for all k greater than equals to 1. ठीक
ठीक है, मतलब हमें ये प्रूव करना है, ये हमें इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का होता है तो हम इस सीरीज़ का क्या ले लेंगे, nth पार्शियल सम कंसिडर करेंगे। लेट इट बी Sn कोई एक नेम ले लेंगे जो कि इस सीरीज़ का nth पार्शियल सम है, ठीक है। फिर हम कहेंगे कि जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को देन Sn कन्वर्जेस टू f, उसके अकॉर्डिंग अब हम इसको प्रूव करेंगे। नाउ सेम एज लेट Snz इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम nth पार्शियल सम है ना, तो समेशन nth टर्म तक जाएगा, दैट इज समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम f1 to n fiz, देन Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज दिस, ठीक है। अब हमें ये मेंशन है दैट दिस सीरीज कन्वर्जेस टू fz। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर क्वेश्चन में n था, इट डजेंट मैटर, यहाँ n था तो यहाँ भी n था, और वेरी तो 1 to इन्फिनिटी ही कर रहा था ना, तो इट डजेंट मैटर अगर हम इंडिसेस को चेंज भी कर देते। सिंस समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी fiz कन्वर्जेस टू fz, इसका मतलब इसका nth पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा fz को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देन Snz कन्वर्जेस टू fz एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ना टेकिंग kth, इसका मतलब लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Snz इज इक्वल्स टू f ऑफ z। नॉट टेकिंग kth डेरिवेटिव, kth डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn, kth डेरिवेटिव Snz इज इक्वल्स टू kth डेरिवेटिव f ऑफ z। तो kth डेरिवेटिव fz क्या हो जाएगा यहाँ पर, समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 1 to n fi, kth डेरिवेटिव ऑफ fiz इज इक्वल्स टू kth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस। तो जब आप लिमिट पुट करोगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ i वेरिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी kth डेरिवेटिव fiz इज इक्वल्स टू kth डेरिवेटिव fz। यही हमें प्रूफ करना था। दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ, दैट इज द all the corollaries of theorem 1 is completed। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।